صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب اگر امام لمبی صورت شروع کر دے اور کسی کو کام ہو وہ اکیلے نماز پڑھ کر چل دے تو یہ کیسا ہے؟ حدیث نمبر 701 ترجمہ دوسری سند اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا کہ ہم سے گندر محمد بن جعفر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے امرو سے بیان کیا کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض نماز پڑھتے پھر واپس جا کر اپنے قوم کے لوگوں کو وہی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بار عشاء میں انہوں نے سورۃ البقرہ شروع کی، مقتدیوں میں سے ایک شخص نماز توڑ کر چل دیا، معاذ اس کو برا کہنے لگے۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اس شخص نے جا کر معاذ کی شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو فرمایا تو بلہ میں ڈالنے والا ہے، بلہ میں ڈالنے والا، بلہ میں ڈالنے والا 3 بار فرمایا، یا یوں فرمایا کہ تو فسادی ہے، فسادی، فسادی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو حکم فرمایا کہ مفصل کے بیچ کی 2 سورتیں پڑھا کرے۔ امرو بن دینار نے کہا کہ مجھے یاد نہ رہیں کہ کون سی سورتوں کا آپ نے نام لیا۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب امام کو چاہیے کہ قیام ہلکا کرے، مختصر سورتیں پڑھے اور رکوع اور سجود پورے ادا کرے۔ حدیث نمبر 702 ترجمہ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے زہیر بن معاوی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا کہا کہ میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا کہا کہ مجھے ابو مسعود انصاری نے خبر دی کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، قسم اللہ کی میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے دیر میں جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کر دیتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی بھی غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو عبادت سے یا دین سے نفرت دلا دیں، خبردار تم میں لوگوں کو جو شخص بھی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب جب اکیلا نماز پڑھے تو جتنی چاہے طویل کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 703 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابو الزناد سے خبر دی، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے کیونکہ جماعت میں ضعیف، بیمار اور بوڑھے سب ہی ہوتے ہیں، لیکن اکیلا پڑھے تو جس قدر جی چاہے طول دے سکتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب اس کے بارے میں جس نے امام سے نماز کے طویل ہو جانے کی شکایت کی۔ حدیث نمبر 704 ترجمہ ہم سے محمد بن یوسف فریبی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے قیس بن ابی حازم سے، انہوں نے ابو مسعود انصاری سے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں فجر کی نماز میں تاخیر کر کے اس لیے شریک ہوتا ہوں کہ فلاں صاحب فجر کی نماز بہت طویل کر دیتا ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصہ ہوئے کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تم میں بعض لوگ نماز سے لوگوں کو دور کرنے کا باعث ہیں، پس جو شخص امام ہو اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب اس کے بارے میں جس نے امام سے نماز کے طویل ہو جانے کی شکایت کی۔ حدیث نمبر 705 ترجمہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے محارب بن دثار نے بیان کیا کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا، آپ نے بتلایا کہ ایک شخص پانی اٹھانے والا 2 اونٹ لیے ہوئے آیا، رات تاریک ہو چکی تھی، اس نے معاذ کو نماز پڑھاتے ہوئے پایا، اس لیے اپنے اونٹوں کو بٹھا کر نماز میں شریک ہونے کے لیے معاذ کی طرف بڑھا۔ معاذ نے نماز میں سورۃ البقرہ یا سورۃ نساء شروع کی، چنانچہ وہ شخص نیت توڑ کر چل دیا، پھر اسے معلوم ہوا کہ معاذ نے مجھ کو برا بھلا کہا ہے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور معاذ کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فتن یا فاتن فرمایا، سبح اسم ربک والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشی سورتیں تم نے کیوں نہ پڑھیں کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، کمزور اور حاجت مند نماز پڑھتے ہیں۔ شعبہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ آخری جملہ کیونکہ تمہارے پیچھے الگ حدیث میں داخل ہے۔
शोबा के साथ इसकी मुताबत सईद बिन मुसर और शीबानी ने की है और इमरू बिन दीनार, उबैदुल्लाह बिन मक़सम और अबुल ज़बीर ने भी इस हदीस को जाबिर के वासिता से बयान किया है कि मुआज़ ने इशा में सूरत अल-बक़रा पढ़ी थी और शोबा के साथ इस रिवायत की मुताबत अमिश ने महारिब के वासिता से की है। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब नमाज मुख्तसर और पूरी पढ़ना यानी रुकू व सुजूद अच्छी तरह करना। हदीस नंबर 706। तर्जुमा हमसे अबू ममर अब्दुल्लाह बिन इमरू ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिस बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अजीज़ बिन सहीब ने अनस बिन मालिक से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को मुख्तसर और पूरी पढ़ते थे। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब जिसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज को मुख्तसर कर दिया। हदीस नंबर 707। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम अबदाल रहमान बिन इमरू उज़ाई ने यही बिन अबी कसीर से बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, इन्होंने अपने बाप अबू क़तादा हारिस बिन रबई से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज देर तक पढ़ने के इरादा से खड़ा होता हूँ, लेकिन किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज को हल्की कर देता हूँ, क्योंकि उसकी मुँह को जो नमाज में शरीक होगी तकलीफ़ में डालना बुरा समझता हूँ। वलीद बिन मुस्लिम के साथ इस रिवायत की मुताबत बशर बिन बकर, बकिया बिन वलीद और इब्न मुबारक ने उज़ाई के वासिता से की है। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब जिसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज को मुख्तसर कर दिया। हदीस नंबर 708। तर्जुमा हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा कि हमसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नमर कुरैशी ने बयान किया, कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हल्की लेकिन कामिल नमाज मैंने किसी इमाम के पीछे कभी नहीं पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते तो इस ख्याल से कि उसकी मुँह कहीं परेशानी में ना मुब्तला हो जाए नमाज मुख्तसर कर देते। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब जिसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज को मुख्तसर कर दिया। हदीस नंबर 709। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी अरूबा ने बयान किया, कहा कि हमसे क़तादा ने बयान किया कि अनस बिन मालिक ने उनसे बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नमाज शुरू कर देता हूँ, इरादा ये होता है कि नमाज तवील करूं, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मुख्तसर कर देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि मुँह के दिल पर बच्चे के रोने से कैसी चोट पड़ती है। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब जिसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज को मुख्तसर कर दिया। हदीस नंबर 710। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमें मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन नदी ने सईद बिन अबी अरूबा के वासिता से खबर दी, इन्होंने क़तादा से, इन्होंने अनस बिन मालिक से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज की नीयत बांधता हूँ, इरादा ये होता है कि नमाज को तवील करूँगा, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मुख्तसर कर देता हूँ क्योंकि मैं इस दर्द को समझता हूँ जो बच्चे के रोने की वजह से मुँह को हो जाता है। और मूसा बिन इस्माइल ने कहा हमसे अबान बिन यजीद ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने, कहा हमसे अनस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस बयान की। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब एक शख्स नमाज पढ़ को दूसरे लोगों की इमामत करे। हदीस नंबर 711। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब और अबुल नुमान मोहम्मद बिन फजल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हमाद बिन जैद ने बयान किया, इन्होंने अयूब सख्तियानी से, इन्होंने इमरू बिन दीनार से, इन्होंने जाबिर से फरमाया कि मुआज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते फिर वापस आकर अपने कौम को नमाज पढ़ाते थे। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब इससे मुताल्लिक़ जो मक़तदीन को इमाम की तकबीर सुनाए। हदीस नंबर 712। तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन दाऊद ने बयान किया, कहा कि हमसे अमिश ने इब्राहिम नख़ी से बयान किया, इन्होंने असूद से, इन्होंने आयशा से कि आपने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ अलूफ़ात में बिलाल नमाज की इत्तिला देने के लिए हाजिर खिदमत हुए। आपने फरमाया कि अबू बकर से नमाज पढ़ाने के लिए कहो। मैंने अर्ज़ किया कि अबू बकर कच्चे दिल के आदमी हैं, अगर आपकी जगह खड़े होंगे तो रो देंगे और क़ुरात ना कर सकेंगे। आपने फरमाया कि अबू बकर से कहो वो नमाज पढ़ाएं। मैंने वही अज़र फिर दोहराया। फिर आपने तीसरी या चौथी मर्तबा फरमाया कि तुम लोग तो बिल्कुल सवाहिब यूसुफ की तरह हो।
अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। खैर अबू बकर ने नमाज शुरू करा दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिजाज ज़रा हल्का पाकर 2 आदमियों का सहारा लिए हुए बाहर तशरीफ़ लाए। गोया मेरी नज़रों के सामने वो मंजर है कि आपके कदम ज़मीन पर निशान कर रहे थे। अबू बकर आपको देखकर पीछे हटने लगे, लेकिन आपने इशारा से इन्हें नमाज पढ़ाने के लिए कहा। अबू बकर पीछे हट गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाजू में बैठे। अबू बकर लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकबीर सुना रहे थे। अब्दुल्लाह बिन दाऊद के साथ इस हदीस को मुहाजिर ने भी अमिश से रिवायत किया है। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब एक शख्स इमाम की अक़तदा करे और लोग इसकी अक़तदा करें तो कैसा है। हदीस नंबर 713। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबू मुआविया मोहम्मद बिन हाज़िम ने बयान किया, इन्होंने अमिश के वास्ते से बयान किया, इन्होंने इब्राहीम नक़ी से, इन्होंने असूद से, इन्होंने आयशा से। आपने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बीमार हो गए थे तो बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की खबर देने आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर से नमाज पढ़ाने के लिए कहो। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अबू बकर एक नरम दिल आदमी हैं और जब भी वो आपकी जगह खड़े होंगे लोगों को शिद्दत गिरिया की वजह से आवाज़ नहीं सुना सकेंगे, इसलिए अगर उम्र से कहते तो बेहतर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर से नमाज पढ़ाने के लिए कहो। फिर मैंने हिफ्सा से कहा कि तुम कहो कि अबू बकर नरम दिल आदमी हैं और अगर आपकी जगह खड़े हुए तो लोगों को अपनी आवाज़ नहीं सुना सकेंगे, इसलिए अगर उम्र से कहीं तो बेहतर होगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग सवाहिब यूसुफ से कम नहीं हो। अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। जब अबू बकर नमाज पढ़ाने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरज़ में कुछ हल्कापन महसूस फरमाया और 2 आदमियों का सहारा लेकर खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव ज़मीन पर निशान कर रहे थे। इस तरह चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए। जब अबू बकर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहट पाई तो पीछे हटने लगे, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा से रोका। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के बाईं तरफ बैठ गए तो अबू बकर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर। अबू बकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़तदा कर रहे थे और लोग अबू बकर की अक़तदा। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब इस बारे में कि अगर इमाम को शक हो जाए तो क्या मुक़्तदीम की बात पर अमल कर सकता है। हदीस नंबर 714। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़ानबी ने बयान किया, इन्होंने इमाम मालिक बिन अनस से बयान किया, इन्होंने अय्यूब बिन अबी तमीमा सख्तियानी से, इन्होंने मोहम्मद बिन सैरीन से, इन्होंने अबू हरीरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज में 2 रकत पढ़कर नमाज ख़त्म कर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ौलीदीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या नमाज कम हो गई है या आप भूल गए हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों की तरफ देखकर पूछा कि या ज़ौलीदीन सही कहते हैं। लोगों ने कहा कि हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और दूसरी 2 रकतें भी पढ़ीं। फिर सलाम फेरा, फिर तकबीर कही और सजदा किया, पहले की तरह या इससे कुछ लंबा सजदा। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब इस बारे में कि अगर इमाम को शक हो जाए तो क्या मुक़्तदीम की बात पर अमल कर सकता है। हदीस नंबर 715। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद हश्शाम बिन अब्दुल मलक ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने साद बिन इब्राहीम से बयान किया, वो अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन से, वो अबू हरीरा से। आपने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ज़हर की सिर्फ 2 ही रकतें पढ़ी और भूल से सलाम फेर दिया। फिर कहा गया कि आपने सिर्फ 2 ही रकतें पढ़ी हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें और पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर 2 सजदे के। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब जब इमाम नमाज में रो दे तो कैसा है। हदीस नंबर 716। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक बिन अनस ने हश्शाम बिन रू से बयान किया, इन्होंने अपने बाप से, इन्होंने उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़ अलूफ़ात में फरमाया कि अबू बकर से लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए कहो। आयशा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ की कि अबू बकर अगर आपकी जगह खड़े हुए तो रोने की वजह से लोगों को अपनी आवाज़ ना सुना सकेंगे, इसलिए आप उम्र से फरमाइए कि वो नमाज पढ़ाएं। आपने फिर फरमाया कि नहीं, अबू बकर ही से नमाज पढ़ाने के लिए कहो।
عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حفصہ سے کہا کہ تم بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ اگر ابوبکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد کر کے گریہ وزاری کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اس لیے ان سے کہے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حفصہ نے بھی کہہ دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس چپ رہو، تم لوگ صواحب یوسف سے کسی طرح کم نہیں ہو، ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بعد میں حفصہ نے عائشہ سے کہا، بھلا مجھ کو تم سے کہیں بھلائی ہونی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب تکبیر ہوتے وقت اور تکبیر کے بعد صفوں کا برابر کرنا۔ حدیث نمبر 717۔ ترجمہ، ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن مرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سالم بن ابوالجعد سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے نعمان بن بشیر سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارا منہ الٹ دے گا۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب تکبیر ہوتے وقت اور تکبیر کے بعد صفوں کا برابر کرنا۔ حدیث نمبر 718۔ ترجمہ، ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالوارث نے عبدالعزیز بن صہیب سے بیان کیا، انہوں نے انس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں سیدھی کر لو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب صفیں برابر کرتے وقت امام کا لوگوں کی طرف منہ کرنا۔ حدیث نمبر 719۔ ترجمہ، ہم سے احمد بن ابی رجا نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معاوی بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زائدہ بن قدامہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حمید طویل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس بن مالک نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب صف اول کے ثواب کے بیان۔ حدیث نمبر 720۔ ترجمہ، ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے امام مالک کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے سمی سے، انہوں نے ابو صالح ذکوان سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، تم میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں جو ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے ضرور آئیں، خواہ سرین کے بل آنا پڑے، اور اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے قرعہ اندازی کریں۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب صف اول کے ثواب کے بیان۔ حدیث نمبر 721۔ ترجمہ، فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں جو ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے ضرور آئیں، خواہ سرین کے بل آنا پڑے، اور اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے قرعہ اندازی کریں۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب صف برابر کرنا نماز کا پورا کرنا ہے۔ حدیث نمبر 722۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں معمر نے حمام بن منبہ کے واسطہ سے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے تم اس سے اختلاف نہ کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو، اور نماز میں صفیں برابر رکھو، کیونکہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب صف برابر کرنا نماز کا پورا کرنا ہے۔ حدیث نمبر 723۔ ترجمہ، ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعبہ نے قتادہ کے واسطہ سے خبر دی، انہوں نے انس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں برابر رکھو، کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب اس بارے میں کہ صفیں پوری نہ کرنے والوں کا گناہ۔ حدیث نمبر 724۔ ترجمہ، ہم سے معاذ بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے فضل بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن عبید تائی نے بیان کیا بشیر بن یاسار انصاری سے، انہوں نے انس بن مالک سے کہ جب وہ بصرہ سے مدینہ آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور ہمارے اس دور میں آپ نے کیا فرق پایا؟ فرمایا کہ اور تو کوئی بات نہیں، صرف لوگ صفیں برابر نہیں کرتے۔
اور उक़बा बिन उबैद ने बशीर बिन यासार से यूं रिवायत किया कि अनस हमारे पास मदीना तशरीफ़ लाए, फिर यही हदीस बयान की। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब सफ़ में कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़े होना। हदीस नंबर 725। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन खालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़हीर बिन मुआवी ने हमीद से बयान किया, इन्होंने अनस से, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ें बराबर कर लो। मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ और हम में से हर शख्स ये करता कि सफ़ में अपना कंधा अपने साथी के कंधे से और अपना कदम पाँव इसके कदम पाँव से मिला देता था। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब अगर कोई शख्स इमाम के बाएं तरफ खड़ा हो और इमाम अपने पीछे से उसे दाएं तरफ कर दे तो नमाज हो जाएगी। हदीस नंबर 726। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे दाऊद बिन अबदाल रहमान ने इमरू बिन दीनार से बयान किया, इन्होंने इब्न अब्बास के ग़ुलाम करीब से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, आपने बतलाया कि एक रात में ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके घर में तहज्जुद की नमाज पढ़ी। मैं आपके बाएं तरफ खड़ा हो गया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से मेरा सर पकड़कर मुझे अपने दाएं तरफ कर दी। फिर नमाज पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। जब मौज़ नमाज की इत्तिला देने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए और वज़ू नहीं किया। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब इस बारे में कि औरत अकेली एक सफ़ का हुक्म रखती है। हदीस नंबर 727। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, उनसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, वो असहक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा से, वो अनस बिन मालिक से, इन्होंने बतलाया कि मैंने और एक यतीम लड़के ज़मीरा बिन अबी ज़मीरा ने जो हमारे घर में मौजूद था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी और मेरी वालिदा सलीम हमारे पीछे थीं। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब मस्जिद और इमाम की दाहिनी जानिब का बयान। हदीस नंबर 728। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे साबित बिन यजीद ने बयान किया, कहा कि हमसे आसिम हौल ने आमिर शबी से बयान किया, इन्होंने इब्न अब्बास से, आपने बतलाया कि मैं एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा सर या बाजू पकड़कर मुझको अपनी दाएं तरफ खड़ा कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा किया था कि पीछे से घूम आओ। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब जब इमाम और मक़तदियों के दरमियान कोई दीवार हाइल हो या पर्दा हो तो कुछ कबाहत नहीं। हदीस नंबर 729। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम बैकंदी ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दा बिन सुलेमान ने यही बिन सईद अंसारी के वासिता से बयान किया, इन्होंने उमरा बिन अबदाल रहमान से, इन्होंने आयशा से, आपने बतलाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में अपने हुजरा के अंदर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। हुजरा की दीवारें पस्त थीं, इसलिए लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दा में नमाज के लिए खड़े हो गए। सुबह के वक्त लोगों ने इसका जिक्र दूसरों से किया। फिर जब दूसरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दा में इस रात भी खड़े हो गए। ये सूरत 2 या 3 रात तक रही। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ रहे और नमाज के मकाम पर तशरीफ़ नहीं लाए। फिर सुबह के वक्त लोगों ने इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं डरा कि कहीं रात की नमाज तहज्जुद तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए, इस ख़याल से मैंने यहाँ का आना नाफ़ा कर दी। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब रात की नमाज। हदीस नंबर 730। तर्जुमा। हमसे इब्राहीम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन इस्माइल बिन अबी फ़दीक ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन अबदाल रहमान बिन अबी ज़िब ने बयान किया, मक़बरी के वासिता से, इन्होंने अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान से, इन्होंने आयशा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चटाई थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में बिछाते थे और रात में इसका पर्दा कर लेते थे। फिर चंद लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हुए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने लगे। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब रात की नमाज। हदीस नंबर 731। तर्जुमा।
हमसे अब्दुल्लाह बिन हमाद ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, अबुन्ज़िर सालिम से, इन्होंने बसर बिन सईद से, इन्होंने ज़ैद बिन साबित से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में एक हुजरा बना लिया या उठ पर्दा। बसर बिन सईद ने कहा मैं समझता हूँ वो बोरिए का था। आपने कई रात इसमें नमाज पढ़ी। सहाबा में से बाज़ हज़रात ने उन रातों में आपकी अक़त अदा की। जब आपको इसका इल्म हुआ तो आपने बैठ रहना शुरू किया, नमाज मौकूफ़ रखी, फिर बरामद हुए और फरमाया तुमने जो किया वो मुझको मालूम है, लेकिन लोगों, तुम अपने घरों में नमाज पढ़ते रहो क्योंकि बेहतर नमाज आदमी की वही है जो उसके घर में हो, मगर फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़नी ज़रूरी है। और रफ़ान बिन मुस्लिम ने कहा कि हमसे वहीब ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, कहा कि मैंने अबुन्ज़िर इब्न अबी उमैया से सुना, वो बसर बिन सईद से रिवायत करते थे, वो ज़ैद बिन साबित से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब तकबीर का वाजिब होना और नमाज का शुरू करना। हदीस नंबर 732। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान हुक्म बिन नाफा ने ये बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे शोएब ने ज़हरी के वासिता से बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे अनस बिन मालिक अंसारी ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घोड़े पर सवार हुए और गिर जाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं पहलू में ज़ख्म आ गए। अनस ने बतलाया कि इस दिन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज पढ़ाई, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, इसलिए हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठकर नमाज पढ़ी। फिर सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम इसलिए है कि इसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वो खड़े होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर पढ़ो, और जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और जब वो सर उठाए तो तुम भी उठाओ, और जब वो सजदा करे तो तुम भी करो, और जब वो सिमिल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम रब्ना वलकल हम्द कहो। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब तकबीर का वाजिब होना और नमाज का शुरू करना। हदीस नंबर 733। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, इन्होंने इब्न शहाब ज़हरी से बयान किया, इन्होंने अनस बिन मालिक से, इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से गिर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज पढ़ी और हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़तदा में बैठकर नमाज पढ़ी। फिर नमाज पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम इसलिए है कि इसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वो सर उठाए तो तुम भी उठाओ, और जब वो सिमिल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम रब्ना लकल हम्द, और जब वो सजदा करे तो तुम भी करो। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब तकबीर का वाजिब होना और नमाज का शुरू करना। हदीस नंबर 734। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें शोएब ने खबर दी, इन्होंने कहा कि अबुलजनाद ने मुझसे बयान किया अरज के वासिता से, इन्होंने अबू हरीरा से, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम इसलिए है कि इसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और जब वो सिमिल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम रब्ना वलकल हम्द, और जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और जब वो बैठकर नमाज पढ़े तो तुम सब भी बैठकर नमाज पढ़ो। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब तकबीर तहरीमा में नमाज शुरू करते ही बराबर दोनों हाथों का कंधों या कानों तक उठाना। हदीस नंबर 735। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़ानबी ने बयान किया, इन्होंने इमाम मालिक से, इन्होंने इब्न शहाब ज़हरी से, इन्होंने सालिम बिन अब्दुल्लाह से, इन्होंने अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उम्र से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते, उसी तरह जब रुकू के लिए अल्लाह अकबर कहते और जब अपना सर रुकू से उठाते तो दोनों हाथ भी उठाते, रफ़ा यदीन करते, और रुकू से सर मुबारक उठाते हुए सिमिल्लाह लमन हमदा रब्ना वलकल हम्द कहते थे। सजदा में जाते वक्त रफ़ा यदीन नहीं करते थे। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब रफ़ा यदीन तकबीर तहरीमा के वक्त रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते वक्त करना सुन्नत है। हदीस नंबर 736। तर्जुमा। हमसे मुहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि हमको यूनुस बिन यजीद एली ने ज़हरी से खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने अब्दुल्लाह बिन उम्र से खबर दी, इन्होंने बतलाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए तो तकबीर तहरीमा के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदीन किया।
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ उस वक्त मुंह कंधों तक उठे और उसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के लिए तकबीर कहते उस वक्त भी रफ़ा यदीन करते। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सिमिल्लाह लमन हमदा, अलबत्ता सजदा में आप रफ़ा यदीन नहीं करते थे। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब रफ़ा यदीन तकबीर तहरीमा के वक्त रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते वक्त करना सुन्नत है। हदीस नंबर 737। तर्जुमा हमसे इसहाक बिन शाहीन वास्ती ने बयान किया, कहा कि हमसे खालिद बिन अब्दुल्लाह तहान ने बयान किया खालिद हज़ा से, इन्होंने अबू क़लाबा से कि इन्होंने मालिक बिन हबीरिस सहाबी को देखा कि जब वो नमाज शुरू करते तो तकबीर तहरीमा के साथ रफ़ा यदीन करते, फिर जब रुकू में जाते उस वक्त भी रफ़ा यदीन करते और जब रुकू से सर उठाते तब भी करते, और इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह किया करते थे। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब हाथों को कहाँ तक उठाना चाहिए। हदीस नंबर 738। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान हुक्म बिन नाफा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें शोएब ने ज़हरी से खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू करते और तकबीर कहते वक्त अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठा कर ले जाते, और जब रुकू के लिए तकबीर कहते तब भी उसी तरह करते, और जब सिमिल्लाह लिमन हमिदा कहते तब भी उसी तरह करते, और रब्ना वलकल हम्द कहते। सजदा करते वक्त या सजदे से सर उठाते वक्त इस तरह रफ़ा यदीन नहीं करते थे। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब 4 रकत नमाज में क़दा औली से उठने के बाद रफ़ा यदीन करना। हदीस नंबर 739। तर्जुमा हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्ली ने बयान किया, कहा कि हमसे उबैदुल्लाह उमरी ने नाफा से बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र जब नमाज में दाखिल होते तो पहले तकबीर तहरीमा कहते और साथ ही रफ़ा यदीन करते। उसी तरह जब वो रुकू करते तब और जब सिमिल्लाह लिमन हमिदा कहते तब भी रफ़ा यदीन करते, दोनों हाथों को उठाते, और जब क़दा औली से उठते तब भी रफ़ा यदीन करते। आपने इस फ़ेल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब नमाज में दाएं हाथ बाएं पर रखना। हदीस नंबर 740। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, इमाम मालिक रा से, इन्होंने अबू हाज़म बिन दीनार से, इन्होंने सहल बिन साद से कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज में दाएं हाथ बाएं कलाई पर रखें। अबू हाज़म बिन दीनार ने बयान किया कि मुझे अच्छी तरह याद है कि आप उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते थे। इस्माइल बिन अबी अवैस ने कहा कि ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई जाती थी, यूँ नहीं कहा कि पहुँचाते थे। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब नमाज में खुशू का बयान। हदीस नंबर 741। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक रा ने अबुल ज़नाद से बयान किया, इन्होंने अरज से, इन्होंने अबू हरीरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम समझते हो कि मेरा मुँह इधर क़िबला की तरफ है? अल्लाह की कसम तुम्हारा रुकू और तुम्हारा खुशू मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब नमाज में खुशू का बयान। हदीस नंबर 742। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे गंदर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मैंने क़तादा से सुना, वो अनस बिन मालिक से बयान करते थे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुकू और सुजूद पूरी तरह किया करो। अल्लाह की कसम मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ, या इस तरह कहा कि पीठ पीछे से जब तुम रुकू करते हो और सजदा करते हो तो मैं तुम्हें देखता हूँ। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब इस बारे में कि तकबीर तहरीमा के बाद किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 743। तर्जुमा हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे शोबा ने क़तादा के वास्ते से बयान किया, इन्होंने अनस से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और नमाज अल-हम्द लल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करते थे। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब इस बारे में कि तकबीर तहरीमा के बाद किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 744। तर्जुमा
हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अमारा बिन क़ाक़ा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबू ज़रा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबू हरीरा ने बयान किया, इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान थोड़ी देर चुप रहते थे। अबू ज़रा ने कहा मैं समझता हूँ। अबू हरीरा ने यूँ कहा, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ, आप इस तकबीर और क़ुरात के दरमियान की खामोशी के बीच में क्या पढ़ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा बाइद बीनी व बीन ख़तायाई कमा बादत बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़नी मन अल-ख़ताया कमा यनक़ी अल-सूब अल-अबीज़ मन अल-दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिल ख़तायाई बालमा वल सलज वल बरद। ऐ अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी कर जितनी मशरिक़ और मग़रिब में है। ऐ अल्लाह, मुझे गुनाहों से इस तरह पाक कर जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल से पाक होता है। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ़ और ओले से धो डाल। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब सूरज ग्रहण के वक्त नमाज। हदीस नंबर 745। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा कि हमें नाफ़ा बिन उम्र ने ख़बर दी, कहा कि मुझसे इब्न अबी मलिका ने असमा बिन्त अबी बकर से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े हुए तो देर तक खड़े रहे, फिर रुकू में गए तो देर तक रुकू में रहे, फिर रुकू से सर उठाया तो देर तक खड़े ही रहे, फिर दोबारा रुकू में गए और देर तक रुकू की हालत में रहे, और फिर सर उठाया, फिर सजदा किया और देर तक सजदा में रहे, फिर सर उठाया और फिर सजदा किया और देर तक सजदा में रहे, फिर खड़े हुए और देर तक खड़े ही रहे, फिर रुकू किया और देर तक रुकू में रहे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और देर तक खड़े रहे, फिर दोबारा रुकू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक रुकू की हालत में रहे, फिर सर उठाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में चले गए और देर तक सजदा में रहे। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि जन्नत मुझसे इतनी नज़दीक हो गई थी कि अगर मैं चाहता तो उसके खुशम में से कोई खुश तुमको तोड़कर ला देता, और मुझसे दोज़ख भी इतनी करीब हो गई थी कि मैं बोल पड़ा कि मेरे मालिक मैं तो इसमें से नहीं हूँ। मैंने वहाँ एक औरत को देखा। नाफा बयान करते हैं कि मुझे ख्याल है कि इब्न अबी मलिका ने बतलाया कि इस औरत को एक बिल्ली नोच रही थी। मैंने पूछा कि इसकी क्या वजह है। जवाब मिला कि इस औरत ने इस बिल्ली को बांधे रखा था ताकि भूख की वजह से वो मर गई, ना तो उसने उसे खाना दिया और ना छोड़ा कि वो खुद कहीं से खा लेती। नाफा ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि इब्न अबी मलिका ने यूँ कहा कि ना छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े वगैरह खा लेती। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब नमाज में इमाम की तरफ देखना। हदीस नंबर 746। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अमिश ने अमारा बिन उमर से बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मुखबिरा अबू मामर से, इन्होंने बयान किया कि हमने खुबाब बिन अरद सहाबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर और असर की रुकत में फातिहा के सिवा और कुछ कुरात करते थे। इन्होंने फरमाया कि हमने अर्ज़ की कि आप लोग ये बात किस तरह समझ जाते थे। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के हलने से। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब नमाज में इमाम की तरफ देखना। हदीस नंबर 747। तर्जुमा। हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि हमें अब्बा सहाक़ इमरू बिन अब्दुल्लाह सबी ने ख़बर दी, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन यजीद से सुना कि आप खुतबा दे रहे थे। आपने बयान किया कि हमसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया, और वो झूठे नहीं थे कि जब वो सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू से सर उठाने के बाद इस वक्त तक खड़े रहते जब तक देखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में चले गए हैं, उस वक्त वो भी सजदे में जाते। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब नमाज में इमाम की तरफ देखना। हदीस नंबर 748। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे इमाम मालिक ने ज़ैद बिन असलम से बयान किया, इन्होंने अता बिन यासार से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रहण की नमाज पढ़ी। लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमने देखा कि नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से कुछ लेने को आगे बढ़े थे, फिर हमने देखा कि कुछ पीछे हटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत देखी तो इसमें से एक खुश लेना चाहा, और अगर मैं ले लेता तो उस वक्त तक तुम उसे खाते रहते जब तक दुनिया मौजूद है। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब नमाज में इमाम की तरफ देखना।
حدیث نمبر 749۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے فلی بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حلال بن علی نے بیان کیا انس بن مالک سے۔ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے قبلہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو جنت اور دوزخ کو اس دیوار پر دیکھا۔ اس کی تصویریں اس دیوار میں قبلہ کی طرف نمودار ہوئیں تو میں نے آج کی طرح خیر اور شر کبھی نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول مذکور 3 بار فرمایا۔ صحیح بخاری۔ کتاب اذان کا بیان۔ باب نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 750۔ ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید قطان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید بن مہران بن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا کہ انس بن مالک نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہایت سختی سے روکا، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔